Good morning, everyone. This side Avantika Pathak, roll number 59, and my topic of presentation is Jacobians. This is in unit third after partial differentiation and Euler's theorem. So, first of all, we will talk about basic concept of Jacobians. It is if there are some functions like u1, u2, and u3 up to un. These are functions of n independent variables. These are function of n independent variables, and let those independent variables be x1, x2, x3 up to xn. Then the determinant is the determinant will be del u1 upon del x1, del u1 upon del x2 अप टू डेल u1 अपॉन डेल xn. मतलब जितने भी हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी नंबर्स तक चलेंगे हम लोग लास्ट तक. तो फिर सेकेंड रो में जब देखेंगे, टॉकिंग अबाउट सेकेंड रो, वी हैव डेल u2 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x2 अप टू डेल u2 अपॉन डेल xn. इन लास्ट ऐसे हमारा चलता रहेगा. लास्ट में जब होगा तो इन लास्ट इट विल बी डेल un अपॉन डेल x1, डेल un अपॉन डेल x2 and del un upon del xn. This will be the determinant, and it is represented as j u1 u2 up to un, and it is shown as del. The formula will be del u1 u2 till un upon del x1 x2 up to xn. This will be the formula. So this was the basic concept of Jacobians, and now we will solve one question over this to clear your doubts. Okay, so the question first, it is that if we have given that if x equal to r cos theta and y equal to r sin theta, okay, we have x equal to r cos theta and y equal to r sin theta, then what will we have to find? We have to find del of xy upon del of r theta, r comma theta, and ऊपर है न्यूमरेटर में del x comma y, and the second thing which we have to find is del r comma theta upon del x comma y. Okay, so now the first thing, we will find this first. So how to find this? Del x comma y upon del r comma theta. So we will apply Jacobian's concept, that is that we will have determinant will be find as del x upon del r, del x upon del r. Now del x upon del theta. Okay, is it clear? Del x upon del r, del x upon del theta, and in second row we will have del y upon del y upon del r, and del y upon del theta. Now how we will find del x upon del r and these all things? For this we have to know partial differentiation. So how we do how we partially differentiate, talking about how we will find del x upon del r, it will be, let's do it in corner, x equal to r cos theta. Del x upon del r means that we have to find del x with respect to del r. So cos theta will be constant. Okay, cos theta will be constant here. So what we will get, we just put cos theta here, and r इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा cos theta का.
So we will get del x upon del r as cos theta. Okay, del x upon del r equal to cos theta. We will get this. Okay, so now we will put here cos theta. Now how we will find dx upon dt? Oh sorry, del x upon del theta. We will find it as del x upon del theta will be r sin theta. How? Del x upon del theta will be r sin theta. हम लोग ने जैसे ऊपर यहाँ पे किया है वैसे ही कर सकते हैं. आर कॉस थीटा था डेल एक्स अपॉन डेल थीटा में, तो इसमें हम लोग को इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है थीटा के टर्म्स में. तो इसमें आर हमारा कांस्टेंट होगा. आर विल बी कांस्टेंट हेयर, सो आर विल बी जस्ट पुट हेयर एंड वी विल डिफ्रेंशिएट कॉस थीटा, दैट विल बी साइन थीटा. वी विल गेट माइनस आर साइन थीटा. ओके, सो वी विल राइट हेयर माइनस आर साइन थीटा. एंड नाउ डेल वाई अपॉन डेल आर, सेम वे में हम लोग डेल वाई अपॉन डेल आर निकालेंगे. वाई जो फंक्शन है उसको हम लोग को आर के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है. ओके, तो आर हम लोग आर के टर्म में हम लोग को करना है. हाँ, तो साइन थीटा हमारा, साइन थीटा विल बी कांस्टेंट एंड आर विल द डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर इज 1. सो वी विल गेट साइन थीटा. इन द सेम वे डेल वाई अपॉन डेल थीटा विल बी आर कॉस थीटा. ओके, सो नाउ इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे. डिटर्मिनेंट क्या होगा? कॉस थीटा इंटू आर कॉस थीटा, फिर साइन थीटा इंटू आर साइन थीटा. माइनस में होता है, अब यहाँ पे माइनस लगा है, सो वी विल गेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा. सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज. मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, we will get r cos square theta plus r sin square theta. ओके, r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा. हम लोग ने क्या किया? cos थीटा को r cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस फिर sin थीटा को हम लोग ने r sin थीटा से मल्टीप्लाई किया. माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे यहाँ पे, r sin स्क्वायर थीटा हो गया. We will take r as common, then what we will get? Cos square theta plus sin square theta, and the formula of cos square theta plus sin square theta equal to 1. Then we will get it as r. तो जो हमारे फर्स्ट चीज़ निकालनी थी हमें डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल आर कॉमा थीटा, तो ये हमारा निकला r. ओके, देन फाइंडिंग द नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग जो हम लोग को निकालनी थी वो थी हमारी डेल r comma theta upon del x comma y. So how we will find this? Same formula of Jacobians. We will just write here del r upon del x and del r upon del y, and in the next row, second row, we will get del theta upon del x, then del theta upon del y. Okay, so for solving this we need how we will find it. First of all we see in this question it was given x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. Okay, so value of r, first of all we will write here x square plus y square. To find the value of r we are doing this. So x square plus y square will be r square cos square theta plus r square sin square theta. ओके, सो आर स्क्वायर विल बी टेकन एज कॉमन एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा हमारा. सो हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1. तो हम लोग को मिला आर स्क्वायर. तो यहाँ से क्या मिला हम लोग को? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. अब हम लोग यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स जो है वो निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं डेल आर अपॉन डेल एक्स? पहले आर स्क्वायर को इस साइड लिख लेते हैं. आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब यहाँ से अगर हम लोग को आर निकालना है एक्स के टर्म में, ठीक है, हम लोग को आर निकालना है एक्स के टर्म में, तो जो वाई स्क्वायर होगा दैट विल बी टेकन एज कांस्टेंट. सो फाइंडिंग दिस वी विल गेट 2r del r upon del x, and x square will be just 2x, and this constant differentiation of constant will be 0. So del r upon del x, we get it as 2x upon 2r. 2 will cancel out and we will get here x upon r. Okay, now in the same way x upon r. Now in the same way we will find del r upon del y. Del r upon del y,
and in this what we will have to do that we will have to differentiate r in terms of y. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा. तो जब हम लोग डेल आर अपॉन डेल वाई इसको करने के लिए निकालेंगे तो पहले तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2r डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट में चला जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, प्लस जो हमारा वाई स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 2y. ओके, तो हम लोग का क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2y अपॉन 2r. This is what we will get. Then 2 will cancel out. Then we will get y upon r. Okay. तो हमें क्या मिल गया, हमें ये डेल आर अपॉन डेल एक्स मिल गया और हमें मिल गया डेल आर अपॉन डेल वाई. वी गॉट बोथ दीज ऑफ थिंग्स. देन we have to find del theta upon del x and del theta upon del y. For this we have to know the value of theta. How to find the value of theta? First of all, just we have written here x equal to r cos theta, y cos theta. This was the question only. Okay, so this is no new thing. R cos theta, r sin theta. Then how we will find value of theta? First of all, divide both of this. So what we will get, x upon y equal to r cos theta upon r sin theta. R will cancel out. Then we will get cot theta here. Okay, cot theta equal to x upon y. Okay, cot theta equal to x upon y. वी विल पुट इट एज मतलब वी विल रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग इसका. तो कॉट थीटा का हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स, एंड देन वी विल जस्ट पुट हेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y एक्स. हम लोग को मिल गई थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y एक्स. वी गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा. ओके, now finding del theta by del x. Okay, we have to find del theta by del x, which was in second row. So finding del theta by del x. So हम लोग को यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है कि x के टर्म में निकालना है. तो जो यहाँ पे हमारा r होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा. तो क्या आई एम सॉरी, हम इसको देख लेते हैं. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को डेल थीटा बाय डेल एक्स निकालना है. तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, तो एक्स स्क्वायर एक्स की टर्म में यहाँ पे क्या लिखा है, y बाय एक्स लिखा है, तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. एंड देन अब हम लोग इसको जिसको x माना था उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे. तो हम लोग को y बाय एक्स का करना चाहिए, मगर जैसा कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि y को कांस्टेंट की तरह है. क्यों? क्योंकि हम लोग को x के टर्म में निकालना है. तो y का जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर. क्यों? क्योंकि y जो है वो हमारा कांस्टेंट है, और जब हम लोग 1 अपॉन एक्स का निकालेंगे तो जब किसी x की पावर -1 का हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो वही हो गया. ठीक है, फिर इसको और प्रिसाइजली लिख देते हैं हम लोग एक्यूरेटली. जब इसको लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस वाई अपॉन, ये एक्स स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड देन दिस एक्स स्क्वायर एंड दिस एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट. ओके, तो ये हमारा हो गया ओवरऑल डेल थीटा बाय डेल एक्स. तब अब फिर जब हम लोग अगली चीज़ निकालेंगे तो वो हमें क्या निकालनी है, डेल थीटा बाय डेल वाई. डेल थीटा वी हैव टू फाइंड डेल थीटा बाय डेल वाई विच वाज इन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ओके, लास्ट पोर्सन इट वाज. ओके, सो डेल थीटा अपॉन डेल वाई. सो इसमें हम लोग का x कांस्टेंट होगा और y को हम लोग को निकालना है. तो सबसे पहले 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वी विल डू द सेम थिंग विच वी हैव डन इन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स. okay, but here x is taken as constant. So x is taken here as constant. तो जो हम लोग y by x का करेंगे तो जो ऊपर y का होगा वो 1 हो जाएगा. ठीक है, डिफ्रेंसिएशन y का 1 हो जाएगा, और जो नीचे होगा we will get it as just because it is constant, so we'll just put it here. We will, okay, 1 by x. So x से x जब हो गया कैंसल आउट तो x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. Hope this is clear. Okay, so we found all of the 4 things. Now we will just put it together. How we will put it together? First of all, the thing was del r upon del x. Okay, so it will be del r upon del x. Second was del r upon del y, and in second row it was del theta upon del x, and in last column it was del theta upon del y. Okay, so now just putting the value of all these things, we get here what we get, x upon r
value of del r upon del x is x upon r, and value of del r upon del y is y by r, and then value of del theta by del x is minus y upon r square, and then value of del theta upon del y is x upon r square. Hope it's clear. Then what we will do, we will just take the determinant out. कैसे करते हैं हम लोग उसको? We will multiply x by r square, and then minus we will multiply this by this. Okay, so just this will be x by r into x by r square minus y by r square into y by r. Okay, got this? So now this will be x square upon r cube, and this will be plus y square upon r cube. We will get x square plus y square upon r cube. Here, as we all know, x square plus y square equal to r square. Here we will put this value, then we will get r square upon r cube, and this square will cancel out, and then we will get 1 by r. सेकेंड चीज की भी हम लोग का आंसर आ गया. ओके, किसका जो निकालना था हमें, डेल आर कॉमा थीटा अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई, उसका आंसर हमारा आया 1 बाय आर, और इससे पहले वाले का आंसर आया था हमारा आर. ओके, सो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ. नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियंस. ओके, सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस. प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस. First property is called as, so the first property is if u and v are two functions of x and y, then means जैसे अभी हम लोग ने दिखाया था कि जो फंक्शंस थे वो x and y इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उनके ये फंक्शंस थे. तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन ऑन टू वेरिएबल्स. ओके, सो इफ u and v are two functions of x and y, then what is the property? Property is del of u comma v upon del of x comma y into del of x comma y upon del of u comma v equals 1. Okay, सो ऐसे ही सेम चीज़ हम लोग ने इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी किया था. उसमें हम लोग को क्या निकालना था? उसमें हम लोग को निकालना था जो चीज़ थी वो थी डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल आर कॉमा थीटा, एंड उसी की सेम रेसिप्रोकल चीज़ जो हम लोग को निकालनी थी दैट वाज डेल आर कॉमा थीटा अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई. ओके, सो इसमें भी यही था. उसको हम लोग प्रॉपर्टीज़ से भी कर सकते थे, बट हमने तब तक प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी थी, तो हमने उसको उससे क्वेश्चन से किया नॉर्मली. ओके, तो उसमें क्या था, जैसे एक की वैल्यू आई थी, द फर्स्ट आंसर वाज आर एंड द सेकेंड आंसर वाज 1 बाय आर. ओके, सो इट वाज द सेम थिंग, बट उसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी से और एक प्रॉपर्टी के बिना भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको करके दिखाया था. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड प्रॉपर्टी वॉज दैट, अब ये जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई है ये हमने टू प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन, इट वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन ऑन टू वेरिएबल, बट इट कैन बी ऑल्सो अप्लाइड ऑन थ्री वेरिएबल्स. कैसे? जैसे अभी हमने यू वी के बाद डब्ल्यू लगा दें, एंड वी विल जस्ट पुट एक्स वाई की जगह जेड, एंड यहाँ पे एक्स वाई की जगह जेड, यू वी के बाद डब्ल्यू. ठीक है, बस उसके बाद फिर हम तब भी आंसर 1 ही आएगा. ये प्रूव करना था कि जब टू वेरिएबल्स का था देन आंसर वाज आल्सो 1, एंड व्हेन देयर विल बी थ्री वेरिएबल्स देन आल्सो आंसर विल बी 1. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड प्रॉपर्टी. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ u comma v are functions of r and s, whereas इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इफ़ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ आर एंड एस, इस लाइन का ये मतलब हुआ कि जब हम लोग जैकोबियंस वाला कर रहे थे तो जो u कॉमा वी, डेल u कॉमा वी होगा वो ऊपर न्यूमरेटर में होगा, बट इन डिनोमिनेटर वी विल गेट डेल आर कॉमा एस. ओके, सो इफ यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ आर एंड एस, वेयर एज आर एंड एस आर फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, then multiplying this del u comma v upon del r comma s into del r comma s upon del x comma y, multiplying what we will get,
जस्ट जो हम लोग को आंसर मिलेगा वो क्या होगा, डेल यू कॉमा वाई अपॉन डिनोमिनेटर में हम लोग का ये आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वी विल गेट, इट विल बी डेल यू कॉमा वाई अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई. This is the property. Okay, this was the second property कि अगर u and v are functions of r and s, this means del u comma v will be the numerator, del r comma s will be denominator, and del r comma s are the functions of del u comma y. This means del r comma s are the numerator and del x comma y are denominator, is denominator. Okay, so the thing which we will get after multiplying both of these, this will be del u comma y upon del x comma y. Okay, now talking about third property. The third property, it is if function u, v, w, if there are three functions u, v, w, and these are the functions of three independent variable x, y, z. Okay, wait, variable x, y, z. If functions u, v, w of three independent variable x, y, z, but these are not independent. Okay, if I'm explaining, just wait 1 minute, are not independent, then so what does this theorem says, कि if we have three functions u, v, w, okay, and these are functions of three independent variable, but these are not independent, these functions are not independent, then what we will get, the property is that del u, v, comma w, मतलब del of these functions upon जो independent variable है, इन दोनों का जो partial differentiation का ratio होगा वो 0 होगा. Okay, the ratio of partial differentiation of u, v, comma w with respect to x, comma y, comma z, it will be 0. अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर रिलेशनशिप निकालने को आए कि जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यू, वी, डब्ल्यू की हमें वैल्यू दे रखेगी, तो हमारा बोलेगा कि आर दीज रिलेटेड, आर दीज डिपेंडेंट टू ईच अदर, और दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, देन वी विल फाइंड दिस. ओके, we will find this value, and if it will be equal to 0, जैसे u, v, w से हमें कोई फंक्शन दिया है तो x, y, z के रिस्पेक्ट में हम लोग उसे निकाल लेंगे. फिर क्या होगा कि अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब कि वो डिपेंडेंट है एक दूसरे से, दे आर इन अ रिलेशनशिप. ओके, फिर अब एग्जामिनर हमसे रिलेशनशिप के बारे में पूछ सकता है कि क्या रिलेशनशिप में होंगे, तो वो क्वेश्चन करके जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मतलब जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको x, y, z के रिस्पेक्ट में निकाल के हम लोग देखेंगे जो भी रिलेशनशिप आएगी. बट यहाँ पे मेरा मेन पॉइंट ये है कि इफ इट इज इक्वल टू 0, देन दिस मीन्स दैट दीज आर dependent to each other. Okay, these are not independent. So here my presentation is finished, and now I will conclude my presentation. Thank you.